Hello everyone, my name is Mudit Pandey. I am the co-founder of My Admission Card and president of CV Foundation. I am very glad and happy to have Mr. Amit Upadhyay from OET here today in our studio. Hello sir, how are you? Welcome to our studio and show Talk to You. Thank you, Mudit. Very nice to meet you. Thank you for inviting me over. My name is Amit Upadhyay and I'm the regional director for OET in India and South Asia. It's recent joining at OET, but I've had more than 20 plus experience of higher education, primarily looking into high-stake assessments and supporting students and professionals who would like to migrate to various countries. Okay, so just for our audience sake, as you said, you have 20 plus years of experience. So was it in the same industry of testing and learning, or have you done something else also prior to that? Well, I've been part of the education industry for almost all of my professional career. I started with providing services to various publishers in my previous roles before stepping into full-time IELTS business with Cambridge University Press. There we used to design learning and practice materials for IELTS test takers and support them, in gaining confidence, familiarizing themselves with the test. और उससे उनकी preparation, अच्छी हो जाती थी, confidence बढ़ जाता था, and therefore they were able to achieve better scores. Post that, I joined Pearson and started leading the Pearson Test of English business. Now, Pearson Test of English is also a high-stake English language assessment used for international study applications. I led that business for about 4 years and finally moved over to Oxford International, where I was the regional director for India and South Asia for their digital suite of products. So what that means is they had a high-stake English language assessment, but they also had other pathways which students could enroll and utilize to pursue their higher education in the UK and elsewhere in the world. What is OET? Yeah, I think that's the very apt question to ask right now, right at the start of this interaction. OET is the preferred high-stake English language assessment for healthcare students and professionals. Now, बहुत सिंपल भाषा में अगर बोलें तो एक high-stake English language assessment है जो healthcare students and professionals के काम आता है जब वो बाहर पढ़ना या प्रैक्टिस करना चाहते हैं. सो IELTS की से कैसे डिफरेंट है? फॉर एग्जांपल हमारे ऑडियंस बिकॉज बहुत नीश है अभी. सो अगर जैसे PTE है, IELTS है, सो OET जैसे अब उन्होंने पहली बार में भी सुना होगा. सो क्या IELTS देख करके बच्चा मेडिकल की तैयारी करने या प्रोफेशन के लिए बाहर नहीं जा सकता? इज इट नेसेसरी कि OET ही देना पड़ता है? That's also a very good question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. So बाकी के सारे टेस्ट जिनका आपने नाम लिया अभी, ये सारे जनरल इंग्लिश टेस्ट हैं. सो अपना जो फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर का स्टूडेंट है या नर्सिंग कर रहा है या मेडिसिन पढ़ रहा है डॉक्टर बनने के लिए, जब वो लोग हेल्थ केयर की स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो वो लोग जिन चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन नोट्स, राइटिंग पेशेंट ट्रांसफर नोट्स, राइट, रेफरल लेटर्स, राइट, यही सब OET के अंदर टेस्ट किया जाता है. सो जो बाकी के टेस्ट हैं उनमें आपको बहुत सारी रेंज ऑफ टॉपिक्स, वोकैबुलरी डेवलप करनी पड़ेगी, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप कोई एक डिसेंट स्कोर निकाल पाएंगे उसमें. Whereas in terms of OET, this is something that they are already learning when they are studying their courses. And OET 12 प्रोफेशंस को टेस्ट करता है. सो हेल्थ केयर के जितने भी प्रोफेशंस हैं, whether it be nursing, medicine, so doctors, occupational therapists, podiatrists, 12 प्रोफेशंस across healthcare, सभी के लिए OET एग्जामिनेशन वैलिड है, right? There is a OET test for every profession. So for example, when a nursing student wants to appear in OET, they will be appearing in OET nursing examination. Very specific to them. Very, very specific. So उनको तैयारी कम करनी पड़ेगी अगर हम कंपेयर करें दूसरे. Exactly. So जो जनरल लैंग्वेज टेस्ट होते हैं वो जनरल इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट्स डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं. उनके क्वेश्चन आइटम्स जो लिखते हैं वो जनरल इंग्लिश के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग लिखते हैं. इन केस ऑफ OET, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट्स कोऑर्डिनेट और liaise with healthcare experts to write every question that appears in OET examination. To give you an example, जब एक OET नर्सिंग ग्रेजुएट हमारा OET नर्सिंग का एग्जामिनेशन देता है तो उसको एक पेशेंट ट्रांसफर लेटर लिखना पड़ेगा. नाउ दिस इज समथिंग जो वो नर्सिंग अपने BSc नर्सिंग में पढ़ रहा था या रही थी, राइट? एंड सेम चीज़ वहाँ पे OET के अंदर उसको एज एन असेसमेंट प्रूव करके दिखाना है कि वो एक अच्छा पेशेंट ट्रांसफर लेटर लिख सकते हैं. सो नॉलेज है, इंग्लिश स्किल्स प्रैक्टिस करनी है, बट टास्क वही करना है जो आप पहले से लर्न कर रहे हैं. हम अपने प्रोफेशन में स्किल्ड हैं, वो इससे इस टेस्ट से प्रूफ हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. एग्जैक्टली, कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में. करेक्ट. और इसके कई बेनिफिट्स हो जाते हैं, राइट? सो इफ यू लुक एट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर OET,
आप अपने प्रोफेशन की तैयारी ऑलरेडी कर चुके हो, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को प्रैक्टिस किया, बट प्रोफेशनली जो आप टास्क करने वाले हो उन्हीं को आप OET में असेसमेंट दोगे, विच मीन्स दैट यू आर नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ टेस्ट बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर करियर अहेड। आप जब वर्क प्लेस में जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे, तो आपको यही पेशेंट ट्रांसफर लेटर लिखना है। सो ये आपकी अभी से एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाउ टू डू इट। So OET does not just prepare, for these healthcare students or professionals for the test, but OET preparation leads to better career success as well. Okay. Yeah. So moving forward on the same thing, मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था, हो सकता है ऑडियंस के दिमाग में भी आ रहा हो। जैसे IELTS में हमारे पास 4 सेक्शन होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। So क्या OET में भी ऐसा ही कुछ पैटर्न है? That is correct. 4 सेक्शन होते हैं। Correct. So see, हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं एक्चुअली एक ही मिनट के अंदर। किसी भी लैंग्वेज के 4 ही कंपोनेंट्स होते हैं। 2 प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं और 2 रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं। रिसेप्टिव स्किल्स लिसनिंग एंड रीडिंग, जिनमें हम रिसीव कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्टिव स्किल्स जहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं लैंग्वेज, सो राइटिंग एंड स्पीकिंग, राइट। सो कोई भी हाई स्टेक असेसमेंट जब इंग्लिश का होगा या किसी भी लैंग्वेज का होगा तो उसमें ये 4 कंपोनेंट्स रहेंगे एंड OET के अंदर भी है। OET के अंदर भी। सो OET की क्या कॉस्ट आती है नॉर्मली बच्चे को? सो OET का प्राइस जो है वो $587 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, विच कम्स टू अराउंड 31,000-32,000 रुपीज, इंडियन रुपीज, राइट। बट आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि ये तो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है कंपेयर टू अदर्स। बट होता क्या है कि जब हमारे एक हेल्थ केयर का स्टूडेंट या प्रोफेशनल जब वो किसी एक जनरल लैंग्वेज टेस्ट की तैयारी करता है तो उसको अटेम्प्ट ज़्यादा देने पड़ जाते हैं, बिकॉज उसको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, बहुत वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को स्टडी करना है, वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, और उसके बाद वो टेस्ट देना है, एंड फिर भी वो मल्टीपल टाइम्स देते हैं। और ये आप मार्केट नॉलेज है और आप रिसर्च भी कर सकते हो कि उनका रिपीट टेस्ट टेकिंग बहुत हाई रहता है इंडिया के अंदर। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को इक्विप करना, अपनी वोकैबुलरी को डेवलप करना इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू लैंग्वेजेस स्पोकन इन अ कंट्री विच इज क्लोजर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, राइट। सो व्हाट बिकम्स इम्पॉर्टेंट इज दैट अगर मैं जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहा हूँ उसी तरह की इंग्लिश, उसी तरह की वोकैबुलरी, उसी तरह की टर्मिनोलॉजी को मुझे प्रैक्टिस करना पड़े और इम्प्रूव करना पड़े तो मैं जल्दी कर लूँगा। That is where OET is very helpful for our healthcare graduates, because they'll only prepare for medical terminology and medical vocabulary, medical topics. So OET किस कंट्री में acceptable है? That's a very good question. So OET, historically हमारे ज़्यादातर टेस्ट टेकर्स UK की तरफ ज़्यादा जाते हैं. So most of the Indian, healthcare professionals जो OET लेते हैं वो जनरली National Health Services in the UK, वहाँ पे NHS एक्सेप्ट करती है OET का इसको. NHS एक्सेप्ट करती है, but I'm just going to expand on this. So OET is accepted by 500 plus institutions across 19 countries and it's growing. आज की डेट में if you talk about UK, US, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, a whole lot of other countries, they all accept OET. So अगर किसी भी प्रोफेशनल का की इच्छा है कि वो UK को छोड़ के किसी और कंट्री में भी ट्राई करना चाहे तो they can take OET. It will become an easier journey for them. They will have a faster integration in the workforce. और इसके ऊपर हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक इम्पैक्ट स्टडी भी किया था, OET की वेबसाइट पे अवेलेबल है फॉर एनीबडी हु वुड लाइक टू टेक अ लुक. NHS prefers OET as a healthcare examination, healthcare English language examination. So उसका रीजन ये है कि NHS says that people who come with OET scores, उनका integration in the workforce is faster, easy है, seamless रहता है. ये तो समझ में आ रहा है because they are learning the same terminology, so it's easy for them to understand what a doctor wants to say. और जैसे कि एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को मुझे कुछ रेफरेंस लिखना है तो क्या टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए so that he should also easily understand. Correct, absolutely. And इसका एक और फैसेट भी है जो मैं कवर कर सकता हूँ यहाँ पे. आप अगर नॉर्मली रिसर्च करेंगे, गूगल पे भी रिसर्च करेंगे तो ऑलमोस्ट 27 to 30% ऑफ आवर वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स इन हेल्थ केयर सिनेरियोज, जो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन गैप्स, राइट. सो व्हेन पीपल प्रिपेयर फॉर OET, what happens is the communication with doctors, the communication with other healthcare staff members, administration, all of that becomes easier. It becomes seamless. So abhi yesterday I was part of a conference called the IATP conference, Indian Association of Test Publishers. वहाँ पे Kevin Baird, the Chief Experience Officer of Prometric, he showcased a presentation.
एंड उसके अंदर यू नो वन ऑफ द कंपनीज दैट ही टॉक्ड अबाउट वाज creating wearable gadgets which will match, you know, the prescription written by the doctor to the medicine that is being issued by the pharmacist. Okay. Now उस गैजेट का पता है काम क्या है उसको? यू नो ये जो फार्मासिस्ट है ये अपने ऊपर यू नो he'll wear it, he or she will wear it, और वो प्रिस्क्रिप्शन से और जो दवाई फार्मासिस्ट इशू कर रहा है उसको मैच करेगा टू एंश्योर दैट देयर इज नो लैप्स देयर, देयर इज नो कम्युनिकेशन गैप देयर, राइट? जो डॉक्टर ने लिखा है एग्जैक्टली वही मेडिसिन उसी यू नो उसी स्ट्रेंथ की उस यू नो पेशेंट को दिया जाए, सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम देयर. व्हाई इज दैट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड? दैट्स द बिगर क्वेश्चन. इट्स द सेम थिंग विद कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल. प्रॉब्लम ये है कि हमारे ग्रेजुएट्स को या सभी जगह पर हेल्थ केयर वर्कर्स को जब वो स्टडीज करते हैं तो उनको क्लिनिकल स्किल्स आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे एकेडमिक रिगर पूरा क्लिनिकल स्किल्स के ऊपर है. जो कम्युनिकेशन स्किल्स का गैप है वो कवर नहीं हो पाता बिकॉज उस लैंग्वेज के ऊपर फोकस नहीं है. Now, you and me both know, Mudit, कि English is the connecting language of the world, right? And if you are good at clinical skills, अगर आप अपने काम में अच्छे हैं, काम में माहिर हैं, आपको अपना नर्सिंग का जॉब आता है, बट अगर आप उसे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक तो you know it might result in incidents or accidents, but also your career progression, you know, will become a problem, right? It'll be slower. International opportunities will be lesser, right? चाहे वो मेडिकल टूरिज्म हो, राइट, जहाँ पे इंट्रैक्शन होता है विद मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, या फिर अगर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हो अब्रॉड, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, राइट. सो जो भी इंटरनेशनल एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, या आपको बेटर हॉस्पिटल्स में बेटर पे पैकेजेस, यू नो, बेटर करियर प्रोग्रेशंस, बिकॉज ऑफ दोज कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. So if you start preparing for something like OET, and if you know take an OET and achieve a significant level, a good level, then you're able to showcase to a hospital that I'm equipped with the clinical skills that you need for me to deliver, and I've got the communication skills to be able to make a difference and do well in the setting that I'm getting in. So यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है मेरे दिमाग में, जो अगेन इट्स अ वेरी जेनरिक क्वेश्चन कि बेसिकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप बता सको कि मैं सही हूँ या मैं सही समझ पा रहा हूँ कि नहीं. कि OET वो उन दो लोगों के लिए है जो या तो विदेश में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, या तो वो विदेश में मेडिकल फील्ड में काम करना चाहते हैं. बिल्कुल सही है. सो अगर किसी को UK के किसी मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS करना है, सो ही कैन इंस्टेड ऑफ IELTS ही कैन ऑल्सो कैन टेक OET. Correct. Right? So now that's absolutely right. Now the question that we need to answer here is that you've got to visit the Who Recognizes OET page, हमारी वेबसाइट के ऊपर, राइट? जो ये पेज है Who Recognizes OET, हमारी OET.com वेबसाइट के ऊपर है, इजीली मिल जाएगा. उसके अंदर all the universities, you know, all the courses that accept OET are listed. Now these courses are in Australia, they are in UK, you know, multiple universities that accept, right? But मैं importantly, you know, इस चीज़ पे emphasis डालना चाहूँगा कि people should prepare well on which college or which university they are targeting. Check on our website whether it accepts OET. If it accepts OET, then they don't need another language test. उनको किसी और language test की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर academic program के लिए OET accepted है, तो उनका border agency भी accept करती है OET को, so फिर किसी और language test की ज़रूरत नहीं है. So अगर यहाँ पे दो बातें मैं और करना चाहूँ, क्योंकि आजकल नर्सिंग प्रोफेशनल्स अब्रॉड बहुत जा रहे हैं. Of course. ठीक है. जिसमें दो कंट्रीज़ नॉर्मली पॉपुलर हैं, एक UK है, दूसरी जर्मनी है. ठीक है. सो UK के लिए ऑब्वियसली दे विल हैव टू हैव अ नर्सिंग डिग्री फर्स्ट ऑफ ऑल टू अप्लाई फॉर द जॉब, एंड सेकंड अभी जो इंग्लिश मांग रहे थे जिसमें आप कह रहे हैं कि दे कैन गो विद OET ऑल्सो. सो इज इट द सेम फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो लाइक जर्मनी? सो जर्मनी का इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है, उनका जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है. Therefore, जो जर्मनी हमारे ग्रेजुएट्स you know माइग्रेट कर रहे हैं आइदर फॉर हायर एजुकेशन और फॉर प्रोफेशन, उनको इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट की जरूरत नहीं. उनको जर्मन लैंग्वेज की जरूरत. बट जो UK और US जा रहे हैं, UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो इंग्लिश फर्स्ट स्पीकिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे अगर वो लोग आइदर एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, और या फिर अगर वो प्रोफेशन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए जाना चाहते हैं, तो दे कैन टेक OET. सो जैसे मैंने पढ़ा था कहीं पे कि US में जो बच्चे कर रहे होते हैं अपना MBBS, उनको 1 या 2 साल अब्रॉड जाके भी प्रैक्टिस करनी होती है, जैसे जो इंडिया से गए होते हैं. सो उनकी पार्ट ऑफ द करिकुलम होता है. सो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड होता था, मुझे भी याद नहीं आ रहा. आई थिंक मेडिकल टूरिज्म टाइप से ही कुछ होता है. तो क्या उनके लिए भी OET नेसेसरी है?
सो सी अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग व्यू पॉइंट है एंड पॉलिसीज हैं अराउंड दिस. सो फॉर मी टू मेक अ क्लियर स्टेटमेंट कि यूएस में अगर आपको मेडिकल टूरिज्म में एंगेज होना है तो आपको ओईटी की जरूरत पड़ेगी. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, सो आई एम गोइंग टू रिजर्व माई कॉमेंट्स ऑन दैट, बट आई कैन टेल यू और आई कैन आस्क यू टू इमेजिन अ सिनेरियो. So you've got a hospital. मेडिकल टूरिज्म में क्या होता है बेसिकली, बाहर के डॉक्टर्स हमारे कंट्री में आते हैं, यहाँ पे अपने प्रोसीजर्स पॉलिसीज दिखाते हैं, यहाँ के ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन. सिमिलरली हमारे ग्रेजुएट्स हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स दे गो टू अ हॉस्पिटल अब्रॉड, वर्क देयर, लर्न देयर, राइट. वहाँ पे क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या मशीनरी है, क्या इक्विपमेंट है, क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉलो किया जाते हैं, व्हाट ड्रग्स दे यूज फॉर वेरियस ट्रीटमेंट्स, राइट. एंड वो सारी नॉलेज फिर लेकर यहाँ पे आकर अपने हॉस्पिटल सेटिंग को, हेल्थ केयर को बेटर करने की कोशिश करते हैं. सो दैट्स मेडिकल टूरिज्म. नाउ इफ यू इमेजिन अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल एक इमेजिन करते हैं, वहाँ पे 100 नर्सेज हैं, राइट. उन 100 नर्सेज में से 20 ने ओईटी की प्रिपरेशन किया है और ओईटी का बी लेवल सर्टिफिकेट है उनके पास, विच इज अ C1 लेवल प्रोफिशिएंसी ऑन CEFR स्केल. अगर जब हॉस्पिटल मेडिकल टूरिज्म में 20 कैंडिडेट्स या 25 कैंडिडेट्स को इवैल्यूएट करने की कोशिश करेगा, तो आई थिंक बाय डिफॉल्ट दे वुड बी द फर्स्ट वंस हु विल गेन एंट्री टू दैट प्रोग्राम. व्हाई? बिकॉज दे आर एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, better in English in healthcare settings, which is endorsed by OET, because उन्होंने OET लिया है और OET ने उनको एक सर्टिफिकेट इशू किया है at a certain level, right, which is trusted and accepted worldwide, right. तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन उनके पास है जो प्रूव करता है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स एप्ट हैं टू गो टू अ कंट्री लाइक फॉर एग्जांपल US and engage with doctors and medical practitioners there, being able to communicate what's happening, absorb what they are learning, and then bring that knowledge back and make an improvement in where they were working. सर इसी पे एक सवाल मेरे दिमाग में और आता है. आई एम सॉरी, आई एम आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस बिकॉज़ इट्स अ न्यू टॉपिक फॉर अस. सो अब जैसे आपने अभी लेवल की बात करी, C1 लेवल, बिकॉज हमारी ऑडियंस आप समझ रहे हैं इसमें कुछ हैं जिनको बहुत कुछ आता है, कुछ हैं जो अभी एकदम स्टार्टर हैं. तो क्या लेवल्स होते हैं पहली चीज़, और कौन सा वो लेवल होता है लैंग्वेज का कि व्हेन इट्स रिकग्नाइज कि नहीं इसकी प्रोफिशिएंसी अच्छी है. जैसे IELTS में 6.5 एक हम स्टैंडर्ड मानते हैं कि नहीं इसकी अच्छी होगी. बड़ी यूनिवर्सिटीज 7 मांगती हैं, 7.5 मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज 6 पे भी मान जाती हैं. तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ है, A लेवल, A2, व्हाट्सएवर? ये थोड़ा सा आप हमें समझाएंगे. ये बहुत ही अच्छा सवाल है मुदित, एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप. आई थिंक ये लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट, पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम किस लेवल पे खड़े हैं. ओके. एंड देन असेसमेंट प्रिपेयर करने की जरूरत है, देन OET देने की जरूरत है, एंड उस लेवल को जिस पे आप जाना चाहते हैं उसको अचीव करने की जरूरत है, जिसकी वजह से आप जो भी एस्पायर कर रहे हैं वहाँ पे पहुँच पाए. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले आपको OET हु रिकग्नाइजेज OET पे जाकर एक बार चेक करना चाहिए कि कौन से मेडिकल इंस्टीट्यूशन में किस लेवल का स्कोर एक्सेप्टेड है, राइट. नोइंग व्हाट यू नीड टू अचीव इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग इट, बिकॉज आप उसे प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे. सो सबसे पहले वेबसाइट विजिट कीजिए और पता लगाइए कि आपको किस स्कोर पे जाने की जरूरत है, राइट. सो दैट्स वन. द सेकंड इज दैट ऑल ऑफ दीज हाई स्टेक असेसमेंट्स, चाहे वो जनरल लैंग्वेज के असेसमेंट्स हो या OET हो विच इज हेल्थ केयर स्पेसिफिक, ये सभी CEFR कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस को अलाइंड होते हैं, राइट. नाउ दैट्स एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग. सो सभी असेसमेंट्स उसी को मैप करते हैं. In OET as well, all the levels, all the certifications that we give, they are all aligned to CEFR scale. Now, various countries, various workplaces, they accept different levels of OET certification, but जो most commonly accepted है वो है BBB-C+. BBB-C+. Now, BBB तो easy है याद रखना, जो C+ है जिसको अलग से याद रखना पड़ेगा वो है राइटिंग. Okay. ठीक है. तो आपको स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग में B लेवल सर्टिफिकेट चाहिए एंड राइटिंग में C+ चाहिए. सर टोटल कितने लेवल? मैं अभी एक्सप्लेन करने लगा हूँ उसको, बिकॉज ये मैं स्टिक करना चाहता था इस थॉट को कि अगर आपको OET लेकर बाहर जाना है तो जनरली जो एक्सेप्टेड लेवल है वो है BBB-C+ विद C+ इन राइटिंग एंड B लेवल सर्टिफिकेट इन ऑल द अदर 3 स्किल्स, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. ठीक है. नाउ व्हाट आर दीज B-C लेवल्स? OET में जो स्कोरिंग होती है वो 2 लेवल्स पे होती है. एक जिसमें मार्क्स आते हैं, राइट, द अमाउंट ऑफ स्कोर दैट यू अचीव,
एंड उसी का ग्रेडिंग होता है A, B, C, D and E. A B C D E. A is the topmost score, which is equivalent to a native English speaker or C2 level proficiency. Okay. CEFR स्केल पे C2 लेवल प्रोफिशिएंसी एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर की होती है. Okay. सिमिलरली OET का अगर A लेवल सर्टिफिकेट आपने अचीव कर लिया है तो वो C2 लेवल प्रोफिशिएंसी का Okay. है. Okay. B लेवल जो है वो C1 लेवल का प्रोफिशिएंसी है, राइट? एंड देन C लेवल जो है वो बिटवीन C एंड B, C प्लस जब आप अचीव करते हैं तो आप B2 और C1 लेवल के बीच में हैं. ठीक है. CEFR स्केल पे, ठीक है. ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली हमारी वेबसाइट पे हाँ, ये तो अवेलेबल है. we'll put it on our Yeah, podcast, right? exactly. We'll take a snap from there and put it, एग्जैक्टली but बहुत it's- इजी रहेगा आपके हाँ, बच्चों को रेफर करने के लिए. we'll do Yeah. that. So ये तो चलिए मेरे को समझ में आ गया कि ट्रिपल बी C C plus. plus Yeah. is the one that everybody looks forward to. Correct. But क्या इसका कुछ प्रैक्टिस पेपर्स ऑलरेडी आप क्या होता है? That's also a very good question. And इसकी before तैयारी कैसे कर सकता है बच्चा? Absolutely, absolutely. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आप तैयारी कैसे करें, जिससे कि आप जो लेवल अचीव करना चाहते हैं उस पर पहुंच जाएं. पर उससे एक मिनट पहले के लिए मैं कुछ और भी बोलना चाह रहा था कि जो बच्चे यहाँ से नर्सिंग ग्रेजुएशन या बाकी के हेल्थ केयर प्रोफेशंस में ग्रेजुएशन करके बाहर निकलना चाहते हैं उनके लिए BBB+C+ है. बट अगर जो बच्चे विद इन इंडिया भी काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो क्लिनिकल स्किल्स अपने नर्सिंग कॉलेजेस में और वेरियस कॉलेजेस में डिफरेंट प्रोफेशंस के वो वहाँ पे क्लिनिकल स्किल्स तो अचीव कर लेते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स के बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम्स आज भी नहीं हैं, राइट? सो आई थिंक उनके लिए भी OET प्रिपरेशन उतना ही ज़रूरी है. बट अगर उनको डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट के लिए देखना है तो उनको BBB+C+ तक जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो C लेवल सर्टिफिकेट भी लेकर आते हैं विच इज़ B2 लेवल ऑन CEFR, तो उनके प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ जाएंगी. उनकी प्रिपरेशन उनको बेटर करियर प्रोग्रेशन की तरफ लेकर जाएगी. सो आई थिंक इंडिया के भी जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, तो वो पूरी तरह से OET को रिकॉग्नाइज करते हैं. इज दैट व्हाट इट मींस? वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट. सो एट द मोमेंट अभी मेरे लिए ये स्टेटमेंट देना मुश्किल है कि दे रिकॉग्नाइज इट, बट we are working on projects where we are trying to create links between nursing colleges and corporate hospitals, getting corporate hospitals to start accepting OET and embedding nursing college programs with OET preparation. So then it becomes a bridge, right? These are projects that I'm working on. Slowly and steadily we will see acceptance, but जब वो होना शुरू हो जाएगा तो हमारे जो नर्सिंग ग्रेजुएट्स हैं या अदर हेल्थ केयर ग्रेजुएट्स हैं उनके करियर प्रोग्रेशंस वुड बिकम बेटर. हॉस्पिटल्स के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं या जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एग्जैक्टली सो वो कम हो जाएंगे. उनका जो एट्रिशन रेट्स हैं वो भी कम हो जाएगा, जो आज की डेट में 47 to 50% है, बहुत हाई है, राइट? एंड ऑल्सो हॉस्पिटल्स बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं इनटू देयर रिक्रूटमेंट एफर्ट्स. फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्नड, दे हैव ओनली अ 3 to 5% सक्सेस रेट इन देयर रिक्रूटमेंट एफर्ट्स. अगर वो 100 लोग इंटरव्यू करते हैं तो वो 3 से 5 नर्सेज उनमें से हायर कर पाते हैं because of poor communication skills. Now, why am I saying poor communication skills? Because clinical skills तो वो पढ़ते आए हैं 4 साल के लिए और उसके बाद हॉस्पिटल का अपना ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है. कोई भी नर्स डिप्लॉयमेंट से पहले नर्सिंग कॉलेज से निकल के ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने के बाद उसको कंप्लीट करने के बाद टू अ सैटिस्फैक्टरी लेवल तभी डिप्लॉय होती है. बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? कम्युनिकेशन स्किल्स में काम आता है बट मैं बता नहीं पाता कि मुझे ये काम आता है और ये ऐसे होगा. वहाँ पे OET preparation is going to be absolutely critical for them to get better career progression. Skilled उनकी enhance हो जाती है. Absolutely. So what are the plans of OET currently in India? That's a very good question. और थोड़ा सा मैं OET का बैकग्राउंड भी आपसे पूछना चाहूँगा. Of course. कहाँ से आई कंपनी, क्या है, and how is it, and what are the future plans of OET in India? बहुत ही comprehensive question है. इसका comprehensive answer देने की कोशिश करता हूँ मैं मुदित. So OET started in about 1980s. 1980s में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के रिसर्चर्स ने OET को पहली बार डिजाइन किया था, राइट? सो इट्स गॉट अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ असेसमेंट. या नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इन 2013 देयर वाज अ बिग लीप दैट OET took by creating a joint venture between Cambridge Assessment English and Boxall Institute, which designed the examination. Now this happened in 2013 and the joint venture was registered in Melbourne in Australia. Therefore it's a Melbourne-based company. Okay. Now, since then it became global. So we started testing in 100 plus countries. We have a growing acceptance because इस merger से क्या हुआ? Global expertise आ गई, right? उससे पहले तक there was local
Australian expertise. यहाँ पे there was global expertise that became part of this. So it developed and grew. Now the growth has been phenomenal. Since the time it started, more than a decade, 1400% growth has happened. Last year, more than 200,000 tests were delivered, OET tests were delivered across the world. So, significant amount of growth. Now, what that growth also means is that we were able to bring a lot of value to all the institutions that accept us. जितने भी institutions, जो हमें across the world accept कर रहे थे, वो भी grow हो रहे हैं, तो उनको value दिखाई देती है. That's the reason why they accept OET. और बहुत सारे जो graduates हैं across the world, जो sending countries हैं, जिनको हम sending countries बोलते हैं, for example, India, Nepal, Bangladesh, Bhutan, South Asia, Southeast Asia, right, and Africa, other places. उनके graduates को, we were able to provide opportunities to work in some of these nations, English first speaking nations. So उनके careers leapfrogged. जो वो domestically, achieve करते हैं उससे कहीं ज़्यादा, they are achieving now by getting deployed in various countries, right? So उनका career progression, we were able to bring value to that. We were able to bring value to all the institutions that accept OET. And what that has also resulted in is that we've had to expand our test centers across the world, right? Because accessibility is one of the problems that we are trying to continuously solve by making more and more test centers available to students or professionals in various parts of the world, bring the testing nearer to them while ensuring that we are absolutely secure and we maintain the highest standards of quality of delivery, right? So, in a nutshell, we started long back, 1980s, when the test was first designed. 2013, OET went global हो गया, ठीक है? And now we've got testing happening in 100+ countries, acceptance in 500+ countries in the world, 500+ institutions in the world across 19 countries, and that continues to grow. And we've got a large user base or test takers who are engaging with the test and therefore benefiting from it. So, sir, as we move forward, what are your plans for India now? How many testing centers do you have in India? अभी जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि रीच बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों को, सो अभी कहाँ आपके टेस्टिंग सेंटर्स हैं और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इनको इंक्रीज़ करने के, बच्चों को प्रैक्टिस में हेल्प कराने के? बिकॉज ये दो पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो प्रिपरेशन कैसे करानी है, दूसरा टेस्ट कितना ईजिली अवेलेबल करा सकते हैं, तो ये इसमें OET के क्या प्लान्स हैं अभी? That's a very good question. I think आपने ये बात जो कही है कि प्रिपरेशन से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है. So I think सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि OET.com पे जाइए और OET रेडी सर्च कीजिए. ठीक है, आपको OET की प्रिपरेशन करनी है तो आपको OET रेडी होना पड़ेगा, तो आप OET.com पे जाकर OET रेडी सर्च कीजिए. वहाँ पे बहुत सारे फ्री एंड पेड लर्निंग रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, दोनों हैं. वहाँ पे सैम्पल प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे, प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स भी मिलेंगे, कुछ फ्री रिसोर्सेज हैं, कुछ पेड हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी लर्निंग कैसे है, राइट? क्या आप एक फिजिकल सेंटर में जाके तब प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर आप ऑनलाइन लर्न करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं. हर किसी का लर्निंग स्टाइल, लर्निंग एटीट्यूड डिफरेंट होता है, तो आप अपने हिसाब से चूज कीजिए. आई थिंक मेरी ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, अगर आपको एक प्रिपरेशन प्रोवाइडर मिल जाए जो OET की प्रिपरेशन करवाता है तो आप उसके साथ एंगेज कीजिए, बिकॉज दे विल हैव अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्लान फॉर यू, असेसमेंट्स रहेंगे, फीडबैक रहेगा, राइट? सो वो अच्छा रहेगा. जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज. एग्जैक्टली, जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज, वो इम्पोर्टेंट है. एंड मोर देन एनी अदर लैंग्वेज टेस्ट, हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर, जो हमारे लर्निंग स्टाइल्स हैं साउथ एशिया में, इंडिया में, जिस तरीके से हम लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फीडबैक लेते हैं और फिर से प्रैक्टिस करते हैं और इम्प्रूव करते हैं, आई थिंक ये सब उससे अलाइन है, राइट? विच इज़ वाई हम लोगों ने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लर्निंग एंड प्रैक्टिस रिसोर्सेज अपने OET.com पे दिए हुए हैं फॉर एनीबडी टू एंगेज, राइट? सो दैट्स अस बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल टेस्ट प्रोवाइडर. बट रिकमेंडेशन फिर भी यही रहेगी कि आप एक लोकल ट्रेनिंग प्रोवाइडर को डेफिनेटली अप्रोच कीजिए जो OET प्रिपरेशन प्रोवाइड करता हो, और उसके साथ में प्रिपेयर कीजिए, आपकी प्रोग्रेस बेटर रहेगी, राइट? सो दैट्स वन. द सेकेंड पार्ट, आपने पूछा कि हमारे टेस्ट सेंटर्स कितने हैं. सो आज की डेट में हमारे अराउंड 37 टेस्ट सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री. मोस्ट ऑफ देम आर कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स द सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. साउथ इंडिया में OET को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जैसा कि हम
सभी ऑलरेडी जानते हैं हाँ कि कि केरला नर्सिंग के में हाँ yeah, बहुत ज़्यादा वहाँ से ऑलमोस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ क्राउड गोज टू अब्रॉड फॉर नर्सिंग. केरला इज द नर्सिंग हब, यू नो, इट्स द नर्सिंग कैपिटल फॉर द वर्ल्ड राइट हाँ, नाउ. the world right आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको केरला के नर्स मिल जाएंगे वहाँ पे, बोथ मेल एंड फीमेल, राइट. सो आई थिंक केरला में हमारे मैक्सिमम टेस्ट सेंटर्स हैं, बट अक्रॉस साउथ इंडिया, अक्रॉस यू नो नॉर्थ इंडिया, अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, यू नो, धीरे धीरे करके हम उसको एक्सपैंड भी कर रहे हैं. बट इवन एट नाउ, एट प्रेजेंट, इफ यू सर्च वेयर OET टेस्ट सेंटर्स आर, you'll find them that they are spread across the country. Okay. So testing facilities available. For example, North Indians के लिए is it available in city like Delhi? Yes. Okay, Lucknow, Right. Bhopal. Not in Lucknow and Okay. Bhopal. So that's something that we'll be evaluating. Okay. So if अगर मेरे पास evidence हो कि वहाँ पे OET preparation हो रही है, then I will definitely want to open a test center there, right? So the list of all the test centers is available on OET.com बहुत easily. Okay. तो आप सर्च कर सकते हैं कि आपके सबसे नज़दीक में OET का कौन सा टेस्ट सेंटर है, ठीक है. So that's the test center piece. Now just adding to that or building on that, we are trying to create more access. So we are trying to expand our test center base for in-person testing, both paper-based test venue. OET दो तरीके से होता है, pen and paper and computer-based. Okay. So TOEFL की तरह. yeah, Okay. correct. So दोनों ही तरह के टेस्ट सेंटर्स को हम एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, you know, across the country, so that it becomes more accessible. So that's one. The other is that we are also continuously developing more and more learning and practice materials, and also trying to work with preparation providers, जो language training schools हैं, उनको equip करके OET preparation courses वहाँ पे include करवाने के लिए, you know, हम लोग work कर रहे हैं आज की डेट में. Now finally, हमारे plans क्या हैं? OET के क्या plans हैं? मेरे क्या plans हैं इस region में? So I think जो important है वो ये है कि OET is not just about the test itself. OET is about preparing our healthcare professionals for better career success. OET की तैयारी करते हैं तो आप केवल एक टेस्ट पास करने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप अपने better career progression की तैयारी कर रहे हैं, right? Because of that sole reason, what I'm trying to work towards is a lot of local institutional partnerships, right? Now that spans across nursing colleges, private language schools, and other institutions that would like to train students on OET, right? जो भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो OET की प्रिपरेशन करवाना चाहती हैं, हम उनको फुली इक्विप करेंगे, सो दैट बच्चों के पास हर जगह अक्रॉस द कंट्री ऑप्शन रहे कि वो OET की प्रिपरेशन अपने नज़दीकी सेंटर्स में जाके कर पाएं. प्रिपरेशन करने के बाद वो OET टेस्ट दें, एक सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन लें, और बेसिस दैट अपने करियर को बेटर बनाएं. सर ये टेस्ट महीने में कितनी बार होता है? सो देखिए, दो तरह की टेस्टिंग होती है, पेन एंड पेपर एंड कंप्यूटर बेस्ड. पेन एंड पेपर के जनरली 2 बार, यू नो, इन ऑल द सेंटर्स दैट वी रन, जनरली 2 बार कंडक्ट होता है महीने में. जो कंप्यूटर बेस्ड सेंटर है उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है, सो वी टेस्ट 5 days a week, 6 days a week, इवन यू नो मोर. सो डिपेंड करता है कि आपके यू नो आपके नियर बाय एरिया में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर है तो उसकी अवेलेबिलिटी आपको हमेशा ज़्यादा मिलेगी. बट पेन एंड पेपर के भी काफ़ी स्लॉट्स होते हैं, सो हर टेस्ट सेंटर में एटलीस्ट 2 स्लॉट्स महीने में होते ही हैं, राइट? आपको रजिस्ट्रेशन डेट्स के लिए पहले से रजिस्टर करना पड़ता है टेस्ट के लिए, राइट? सो आपको एक बार OET की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना चाहिए कि आपको कौन से टेस्ट स्लॉट में टेस्ट देना है और उसकी रजिस्ट्रेशन कब तक क्लोज होती है, सो दैट यू रजिस्टर इन टाइम. एंड प्रिपरेशन जर्नी उससे पहले प्लान कर लीजिए, बिकॉज वी वांट एवरीबडी टू बी सक्सीडिंग इन व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव. सो आवर स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, पहले प्रिपेयर, पहले टेक अ लुक एट आवर वेबसाइट, ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल, फाइंड द इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, या यू नो क्या स्कोर वहाँ पे ज़रूरी है, प्रिपेयर विद अ लोकल प्रोवाइडर, ऑल्सो यूटिलाइजिंग द मटेरियल्स जो हमारी वेबसाइट पे हैं, एंड देन टेक द टेस्ट. ओके, या सो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, अपार्ट फ्रॉम दीज स्टूडेंट, ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो रशिया से या और कज़ाक से या जॉर्जिया ऐसी कंट्रीज से MBBS करके लौट के आ रहे हैं. अगर वो भी इसकी तैयारी करें, सो आई एम क्वाइट श्योर देयर एक्सेप्टेंस रेट एंड करियर ग्रोथ विल बी completely different in India itself. Absolutely, yes. Because India के अंदर भी healthcare sector में English is the common language. Is the common language, right? yes. So अगर कोई भी किसी भी कंट्री से, for example कज़ाक से आपने बात किया या रशिया से बात किया, अगर वो लोग आकर इंग्लिश में बेटर कम्युनिकेट कर पाएंगे तो उनका एब्जॉर्प्शन into the healthcare workforce will be much better, much easier. Confidence भी बढ़ जाता है बच्चे का when he knew कि how to communicate in my
प्रोफेशनल लैंग्वेज बेसिकली, Exactly. जिसको बोलते हैं, then he'll be far more confident Absolutely, in comparison yes. to other candidates की. Absolutely, yes. And language, language learning का part है confidence building, right? So हम लोग हिंदी में इतना confidently क्यों बात कर पाते हैं? Because हम बचपन से उसे practice कर रहे हैं. Same goes for English. अगर मैं किसी को बोलूँ कि आप 1 महीने के अंदर इंग्लिश का एक कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लीजिए और आपकी इंग्लिश बहुत बेटर हो जाएगी, तो आई एम रॉन्ग. It takes time. It takes time. You need to have a structured learning and practice plan, and then you need to also start engaging in conversations with friends, with colleagues, with peers, whoever. जिससे भी मौका मिल पाए आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात कीजिए, लिखिए, राइट, सुनिए, राइट, पॉडकास्ट देखिए, just like the podcast we are recording right now, and then आपकी इंग्लिश इंप्रूव होना शुरू होगी. So in a nutshell, OET is a very important test for not just for aspiring candidates or job seekers, but also for the ones who are engaged in the medical world. That is correct. Absolutely, yes. Because this will always increase their not just confidence but the absorption in the industry. Absolutely, yes. Absolutely, yes. Okay. Just a few final thoughts. So I think it's important that we don't just consider OET for passing a test. OET preparation can help you in your careers. आपके करियर को बेहतर बना सकता है, आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है आपकी हेल्थ केयर लैंग्वेज में बेटर कम्युनिकेट करने में, और आपके इट कैन अनलॉक डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो आज की डेट में आपके पास नहीं होंगी, वो आपको उनका एक्सेस दे सकता है. सो माई रिकमेंडेशन वुड बी टेक अ लुक एट व्हाट इज अवेलेबल ऑन OET.com, OET Ready, Who Recognizes OET. ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं OET.com के ऊपर जिनको आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए. एंड इवन इफ अगर आप बाहर जाने की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपको OET को एक बार चांस देना चाहिए, सो दैट इट कैन हेल्प यू in your careers, even domestically as well. That's practically everything. So thanks a lot, Amit ji, for coming on our studio today and helping the students understand what is OET and solving their inquiries. But just in case for these students, if you still have any further inquiries, do drop a comment on our comment box and we'll try to come back to you as soon as possible. Thanks a lot, sir. Thank you for coming. Thank you, Budit ji, for inviting me, and thank you, My It's Admission pleasure Card, is for inviting me in this podcast. I really loved being here. And I think हमने बहुत ही ज़रूरी बातें की हैं जो बहुत important topic, बहुत यूज़फुल हो सकती हैं. सो आई रियली विश कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी पॉडकास्ट को देखें. Thank you, sir. और आपको कमेंट्स ड्रॉप करें, और किसी को भी किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो टू अंडरस्टैंड OET मोर, I'll be very happy to support Sure. them. They can reach out to you. Absolutely, Either on yes. your LinkedIn profile or other social media. Absolutely, yes. Okay. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.